आज हम रिवर्स स्विमर पे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं and do a quick revision. So if there is a river and we have the river velocity, which is with respect to ground, which I write it as velocity of water with respect to ground, and the man is trying to swim like this. This is velocity of man with respect to water. So velocity of man with respect to water क्या है? अगर वो किसी स्टिल पॉन्ड में अगर स्विम कर रहा होता है, the velocity with which he would be traveling in a still pond जब water move नहीं कर रहा है. Velocity with which he would be swimming in a lake or a pond जिसमें water move नहीं कर रहा है. तो जब वाटर भी मूव करने लगे तो हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज डिफरेंट. सो वी हैव derived this formula कि velocity of man with respect to ground ये हो जाता है velocity of man with respect to water plus velocity of water with respect to ground. So resultant velocity is in this direction. So man की body हमेशा ऐसे aligned है, but he is flowing in this direction. So his actual flow is like this. इस direction में flow कर रहा है. And he will reach somewhere here. So perpendicularly opposite side से जितना आगे move करता है, that we call it as a drift. This is called as a drift. तो रिवर क्रॉस करने का जो टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी एंड यहाँ से जो ड्रिफ्ट है दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. So practice some questions. और भी इसमें cases आते हैं reverse swimming problem में. You'll also see that. So it is given that man can swim in water. Man can swim in still water with speed 4 kilometer per hour. And river velocity का मतलब है कि पानी की velocity river velocity is 3 kilometer per hour. If he swims perpendicular to the flow of water, find time taken to cross a river, this river of width 6 kilometers and find the drift. Find the drift. He swims perpendicular to the flow of water. This flow of water ऐसा है, he is swimming perpendicular to it. So दोनों velocities आपस में perpendicular. If this is velocity of water with respect to ground, then this is velocity of water with man with respect to water. दोनों velocity perpendicular. तो सबसे पहले velocity of man with respect to ground लिखना है.
Anyone got the answer? They can tell me कितना टाइम लग रहा है और कितना ड्रिफ्ट है. 1.5 hours or 4.5 kilometers. Time is how much? 1.5 hours. 1.5 hours. Good. And the drift is 4.5 kilometers. 4.5 kilometer. Good. So velocity of man with respect to water is 4 kilometer per hour. Velocity of water with respect to ground is 4 kilometer per hour. Then we have our formula, velocity of man with respect to ground. That will be equal to velocity of man with respect to water plus velocity of water with respect to ground. That will be 3I cap plus 4J cap. So this is velocity of river, that is water with respect to ground, and this is velocity of man with respect to water. दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए I'll put the tail here and I'll get the resultant like this. तो ये 3I है, ये 4J है. 4J 3I. This is 3, this is 4. If you want to calculate कि किस एंगल में actually swim कर रहे हैं, so this will be at angle. ये 3 है, ये 4 है, तो this will be 37 degree. So man is swimming 37 degree with the 37 degree with the perpendicular direction to the river. So time will be width of the river 6 kilometer divided by perpendicular velocity of 4 kilometer per hour. So that will get as 1.5 hour. और drift की जो value है, that will be is horizontal speed, that is 4. No, horizontal speed is 3 into time taken 1.5. So that is 4.5 kilometers. So this is this. And of course, swimmer हमेशा perpendicular travel नहीं करेगा. कभी-कभी he can swim at an angle. He can swim at an angle. So let's take that case also. कि किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में स्विम कर सकता है, of course swimmer. So कैसे एनालाइज करेंगे उसको? We're going to see here. Okay, let us say मेरा velocity of man with respect to water, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है that is u, and velocity of river with respect to water with respect to ground, that is given to me as, call it v. So velocity of water तो हमेशा horizontal direction में होगा, but velocity of man with respect to water ये किसी भी direction में हो सकते हैं. So let us say it is at an angle theta with respect to the horizontal. It is at angle theta with respect to horizontal. This is velocity of man with respect to water, and इसको, if you need to find velocity of man with respect to ground, that will be, इस वेक्टर को ऐड करना है मुझे velocity of man with respect to water को velocity of man with respect to velocity of water with respect to ground. So इस वेक्टर के हेड पे I'll put another vector, that is velocity of water with respect to ground. So initially angle theta बना रहे हैं horizontal से, और let us say कि vertical से angle लिख देते हैं. Let us say vertical से angle theta बना रहे हैं. Theta is angle with vertical.
सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, एंड दिस एंगल विल बी अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं जो फिगर आउट करना है, एंड दिस वेक्टर विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, अब इसका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर का कंपोनेंट ले सकते हैं, इसका कंपोनेंट ले सकते हैं ये, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया तो इसका लेंथ जो है u है, एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा u cos थीटा j कैप। u cos थीटा कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारा यूजुअल कन्वेंशन है, सामने को x लेंगे ऊपर को y लेंगे, तो ये u cos थीटा ऊपर आ रहा है, तो u cos थीटा j कैप प्लस u sin थीटा i कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है, दिस विल बी v i कैप। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू v प्लस u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा j कैप। समझना है, इसको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला जब भी थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला पे नहीं जाना है। अब इसमें कौन सा कंपोनेंट रिवर क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो ये वाला कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। सो वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर क्रॉस कराने के लिए। सो टाइम क्या लिख सकते हैं? टाइम विल बी, लेट अस से विड्थ ऑफ द रिवर इज d, तो टाइम को लिख सकते हैं टू क्रॉस द रिवर, दैट विल बी d डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा, u cos थीटा। एंगल अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा आ जाएगा इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, इसका एंगल ये है, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा एंगल अल्फा है। सो tan अल्फा विल बी ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है v प्लस u sin थीटा एंड वर्टिकल है u cos थीटा। ठीक है। अगर ड्रिफ्ट यहां से निकालना चाहते हैं तो वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो, ड्रिफ्ट यहां से निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द टाइम टेकन, ऐसे निकाल सकते हैं सारे कंपोनेंट्स। So this is the way component लेके resultant velocity लिख के we can calculate everything again. इसका पर्पस मेरा ये नहीं है कि फॉर्मूला याद रहे, इसका पर्पस है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में स्विमर स्विम कर रहे हैं, so you can figure out कि what will be the time and other things about this. स्विमर की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मीन्स इसकी बॉडी हमेशा ऐसी दिखेगी, हाथ ऐसा दिखेगा, पैर ऐसा दिखेगा, बट वो स्विम करता हुआ इधर जाएगा, स्विम करता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, तो जो स्विम करते हुआ जाएगा वो इस लाइन के लॉन्ग होगा, बट उसकी बॉडी हमेशा थीटा एंगल पे दिखेगी वर्टिकल। तो दिस यू मस्ट रिमेंबर कि जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली वो ट्रैवल कर रहा था उसकी बॉडी हमेशा उसी एंगल पे रहेगी, बट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो अल्फा के डायरेक्शन में होगा, अल्फा के डायरेक्शन में। सो अल्फा इज योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नोट दिस, नोट हो जाए तो बता देना, विल कंटिन्यू। किसी को डाउट है तो ऑफ कोर्स यू शुड आस्क। नोट हो जाए तो जस्ट टेल मी, देन विल डू सम मोर क्वेश्चंस। Done, sir. Okay. Okay. So see, अगर let us say velocity of river with respect to ground
इसकी वैल्यू दी हुई है, हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर लिखते हैं। दिस इज गिवन टू अस एज 4 किलोमीटर पर आवर and velocity of man with respect to water. This is given to us as 5 kilometer per hour at angle 37 degree with horizontal with direction of flow of water 37 degree with direction of flow of water. Perpendicular से नहीं है, direction of flow of water से. So if width of river equals four kilometer or let us say 1 kilometer, then find time taken to cross the river. Find time taken to cross the river. And is actual direction of motion or and the angle that will make and the angle that his velocity makes with flow of river. Solve this. If anyone got the answer, they can tell. Sir, 1/7 hours. 1/7 hours. That is the time. सर वो वाला एंगल 37 कैसे होगा? So it is written that 37 degree with the direction of flow of water. So पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इससे एंगल बनेगा 37. बट वो ऊपर वाला एरो है उससे नहीं बनेगा 37. नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन एज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दोनों के टेल को एक पॉइंट पे रख के एंगल निकालते हैं हमेशा. ओके सर. तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की, दैट विल बी एच आई कैप प्लस 3j कैप. तो टाइम आ जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8. नो, वर्टिकल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर. 1/3 आवर दैट इज 20 मिनट्स. 20 मिनट लगेंगे इसको रिवर क्रॉस करने में. और जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा दैट विल बी दिस डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन. तो मुझे ये एंगल निकालना है अल्फा, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है अल्फा. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, alternate angles. So I can write tan alpha, that will be equal to 3/8. So alpha को लिख सकते हैं tan inverse 3/8. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. Velocity of river with respect to ground, water with respect to ground. This is given to us as 3 kilometer per hour. And
the speed with which man can swim. So velocity of man with respect to water. Man with respect to water. This is given to us as 5 किलोमीटर per hour. और ये किसी भी डायरेक्शन में स्विम कर सकते हैं. But I want to find time, find the direction in which he should swim such that the time taken is minimum. Find the direction in which he should swim such that time taken to cross the river is minimum. मतलब y component maximum हो जाए तो किस एंगल पे फ्लो करना चाहिए. जब y component ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो रिवर क्रॉस करने में सबसे कम टाइम लगेगा. So let us say width of the river is given to us as 2 हाँ वो kilometers. क्यों? क्या क्वेश्चन है वो क्यों में? मतलब y कंपोनेंट मैक्सिमम होगा तो टाइम टेकन विल बी मिनिमम. क्योंकि जो हमारा टाइम टेकन है वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है ना. अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट है तो रिवर क्रॉस करने की जो टाइम है दैट इज जस्ट रिटन एज डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी अलोंग आई कैप नो जे कैप. तो मुझे जे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है. इज दैट क्लियर? ओके सर. हाँ. और इतना करने के बाद यू हैव टू फाइंड ड्रिफ्ट आल्सो इन दिस केस. आंसर आ रहा है किसी का? इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो कंपोनेंट लेके और दूसरा है कि वेक्टर्स सिर्फ एनालाइज करके. सी मेरे पास डिफरेंट केसेस है ना. मींस कुछ भी करें वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो हॉरिजॉन्टली रहने वाले हैं. वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टली नहीं रहने वाले. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हम चेंज कर सकते हैं. लेट अस से मैन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इनिशियल टेल टू फाइनल. तो मुझे टेल से मतलब नहीं है, हेड से मतलब नहीं है, मतलब रिजल्टेंट से कोई मतलब नहीं है. मुझे क्या चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम चाहिए. तो वर्टिकल कंपोनेंट में मैक्सिमम करने के लिए लेट मी रोटेट दिस. इसको घुमाते जाते हैं. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना. अभी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका? ये इतना वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और इतना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. दूसरे केस में क्या करते हैं? इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं. ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, दैट वाज मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया, दैट इज 5. और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो कांस्टेंट ही है 3. एंड द रिजल्टेंट इज दिस. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट 5 हो गया और हॉरिजॉन्टल 3 हो गया. दूसरा केस क्या, और क्या केस ले सकते हैं कि जो मैन की वेलोसिटी है वी कैन टेक इट इन दिस डायरेक्शन एंड रिवर का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला, दैट इज 3 एंड दिस इज 5. सो ये जो डायरेक्शन हो गया दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो सी यहाँ पे जो 5 का कंपोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल में ऐड होगा है, बस ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना पूरा हो गया.
तो इस केस में मैक्सिमम आ रहा है। मीन्स मैन जब रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करने का ट्राई करेगा, देन द टाइम टेकन बाय हिम विल बी मिनिमम। मैन जब रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करेगा, देन हिज टाइम विल बी मिनिमम। तो ये वाला केस होगा, दिस केस। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला केस लेंगे, दैट विल बी 5j क्या प्लस 3i क्या। तो यहाँ से हम टाइम को लिख सकते हैं इजीली, दैट इज 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5। और मिनट में लिखना चाहते दिस इज आवर्स, मिनट में दिस विल बी 12 5 60 12 24 मिनट्स, इतना टाइम लगने वाला है। और ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं 2/5 into 3। सो हिज ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, उसको लिख सकते हैं 3 into this much, so 6/5 किलोमीटर्स। ये सबको समझ में आया कैसे किया हमने सॉल्व? अगर वेलोसिटी को किसी और डायरेक्शन में लेते हैं, तो वेलोसिटी को अपना कंपोनेंट शेयर करना पड़ जाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो एक ही केस है जब हॉरिजॉन्टल से शेयर नहीं करना पड़ेगा, जब उसकी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हो जाए रिवर वेलोसिटी के। अदिति, ये क्लियर हो गया? समझ में आया ये वाला? हाँ सर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम वाला केस। मिनिमम टाइम के लिए he has to flow perpendicular to river. So minimum time for minimum time swim perpendicular to river. Swim perpendicular to river. तो ये केस है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, सेम फॉर सेम थिंग, मींस द बेसिक क्वांटिटीज आर द सेम, सेम रिवर है, सेम मैन है, और फिर से वो रिवर क्रॉस करने का ट्राई कर रहे हैं। But in this question, it is asked that find the direction in which man should swim such that drift is zero. Such that his drift is zero. तो ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, such that his drift is zero. Think about it, take some time, and let us see who can solve it. ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। टाइम टेकन तो जीरो नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही जीरो कर सकते हैं। जस्ट गिव अ हिंट, तो ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए मैन की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट शुड बी परपेंडिकुलर। velocity of man with respect to ground, that should be perpendicular. So बाकी वेक्टर्स इसके हिसाब से अरेंज करें। सर 90 डिग्री होगा ना? 90 डिग्री क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नो, द डायरेक्शन। डायरेक्शन इन विच द मैन शुड स्विम, नहीं 90 नहीं होगा। सी, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वर्टिकल होना चाहिए। अच्छा, इसको पहले हम एनालिटिकल वे में करते हैं, उसके बाद फिर वेक्टर वाले मेथड से करेंगे फटक से। तो अभी वेलोसिटी ऑफ लेट अस से कि
this is velocity of man with respect to water, और horizontal है this is velocity of water with respect to ground. तो लेट अस से जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है इसको हम बोल देते हैं थीटा. सो ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहें तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा 3 cos थीटा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 3 sin थीटा. सो वर्टिकल वाला आ जाएगा 3 cos थीटा और हॉरिजॉन्टल हम लिख सकते हैं 5 आगे की तरफ है बट 3 पीछे की तरफ है. तो 3 cos थीटा j कैप प्लस 5 माइनस 3 sin थीटा आई कैप. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कंपोनेंट 0 चाहिए. दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो दिस will have no drift. Means the resultant velocity that becomes perpendicular. So 5 minus 3 sin theta should be 0. That implies sin theta should be 3/5. तो सीधे लिख सकते हैं theta should be equal to 37 degree. So जब theta 37 डिग्री होगा तो थीटा 37 डिग्री होगा. सो इन दैट केस ये वाला एंगल 37 हो जाएगा. ये हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये 5 है ना, ये 5 है, ये वाला 3. ये 5 है. सो 5 cos थीटा j कैप और this will be also 5 sin theta 5 cos theta. तो 3 minus 5 sin theta. 3 minus 5 sin theta should be 0. Sin theta 3/5. So theta is 37 degree. So ये 5 है और जो रिवर की वेलोसिटी है दैट इज इन फ्रंट आगे के डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू 3. तो 5 का कंपोनेंट लिया तो 5 का कंपोनेंट 3 ऊपर आ रहा है और नहीं 4 ऊपर आ रहा है. 5 cos 37 और 5 sin 37 पीछे आ रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना रिवर आगे ड्रिफ्ट करा रहा है उतना मैन उल्टा स्विम कर ले रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर ले रहे हैं. तो मैन का एक कंपोनेंट जो है रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका जो ड्रिफ्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा. इसका जो ड्रिफ्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा. सो मैन जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है एंड उसकी वजह से उसका एक कंपोनेंट रिवर के डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो ये कंपोनेंट लेने वाला हमारा बेसिक मेथड है. कंपोनेंट लेने वाला बेसिक मेथड है. और दूसरा हम वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली वेक्टर मेथड से कर सकते हैं. तो सेकंड मेथड में हम वेक्टर मेथड से करेंगे. और वेक्टर मेथड पे क्या है, सिंपली हमारा एक जो रिजल्टेंट चाहिए वो हमें पता है कि वर्टिकल चाहिए. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वर्टिकल होना चाहिए क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है हाउ द मैन इज स्विमिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो मुझे वेक्टर सम का फॉर्मूला भी पता है, सो आई कैन राइट दैट आल्सो. सो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये दो वेक्टर्स का सम है. पहला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर और दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो दूसरा वेक्टर मैं हमेशा यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज कन्वीनियंट फॉर मी. तो थर्ड वेक्टर ऑफ कोर्स जो मेरा ब्लू वाला वेक्टर है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर. वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए ताकि ये वाला एंगल जो है परपेंडिकुलर हो जाए. एंड व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो यहाँ से एक ट्राइंगल बन गया. इसमें ये 5 है और ये 4 है. ये 4 तो बाद में निकाल सकते हैं. ये 3 है, ये 5 है, 3 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये वाला 4 आ गया, ये वाला 4 आ गया. तो इसका जो एंगल है निकाल सकते हैं. 3 और 4 है तो एंगल हो गया 37 डिग्री.
So theta with vertical आ गया 37 degree. So we can note this down, that can make a note for zero drift. For zero drift, horizontal component of velocity should be zero. Horizontal component of which velocity? Velocity of man with respect to ground should be zero. This should be zero. तो इस केस में ड्रिफ्ट हमेशा जीरो होगा. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर सपोज मैन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये ऐसा दिखेगा ना कि ही इज हिज बॉडी इज अलोंग दिस डायरेक्शन. मैन की बॉडी इज अलोंग दिस डायरेक्शन. बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा कि ही इज स्विमिंग लाइक दिस. उसकी बॉडी हमेशा इस डायरेक्शन में, बट वो हमेशा फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट, लाइक दिस. कॉपी में डायग्राम बड़ा 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 बनाएंगे तो फिर डायग्राम अच्छा बनेगा. तो उसकी बॉडी का एंगल हमेशा 37 डिग्री बना रहा है, तो जिसका फ्लो का डायरेक्शन है वो हमेशा 90 डिग्री. नोट दिस. कोई डाउट है तो देन आस्क. सो वेक्टर वाला जो मेथड होता है वो हमेशा इजी पड़ता है, बिकॉज सिर्फ वेक्टर्स ड्रॉ कर लिया और तुरंत सॉल्व कर लिया. बट अगर स्कूल एग्जाम में पूछा जाए तो ये वाला मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है. ठीक है, नोट कर लिया तो एक और क्वेश्चन करता है इसी तरह का. लेट अस से एक बोट, इंजन वाली बोट है, एंड इट इज फ्लोइंग इन द रिवर which has a width of 6 kilometers. And velocity of boat with respect to still water, velocity of boat with respect to still water, that is given to us as 10 kilometer per hour. And velocity of water with respect to ground, that is given as 6 kilometer per hour. So पहला find minimum time to cross the river. Find minimum time to cross the river. बोट को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बस फ्लाई नहीं करा सकते, वाटर में ही ले जाना है. Find minimum time to cross the river. And second, find boat's direction such that drift is zero. Find boat's direction such that drift is zero. Vaishnavi, can you tell me the minimum time? मिनिमम टाइम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए. So velocity of man with respect to water. Yeah, tell me. Minimum time should be how much? If you're saying something, I can't hear you.
भारवी, कैन यू टेल मी मिनिमम टाइम कितना होगा? 36 minutes. 36 minutes. So velocity of a boat with respect to water should be perpendicular, and this should be 10. And water with respect to ground is 6. तो ये resultant हो जाएगा, but we don't velocity of this velocity of boat with respect to ground. So time taken would be 6 kilometer upon 10 kilometer per hour. That would be 3 by 5 hour. That is 36 minutes. Aditi, can you tell me the boat's direction जिसमें drift 0 हो जाए? Drift 0 करने के लिए velocity of boat with respect to ground should be perpendicular. ये flow का direction है, उसके perpendicular है. ये 6 हो गया, ये 10 हो गया. ये एंगल निकालना है. कितना आ जाएगा ये एंगल थीटा? ये 10 है, ये 6 है, तो ये थर्ड वाला 8 हो जाएगा. निर्मित आंसर कितना आ रहा है? सर cos inverse 3/5. cos इनवर्स 3/5 कितना होता है? um 53 degree. 53 डिग्री. अच्छा, ये 10 आया, ये 6 आया, तो ये 8 आया होगा ना? Sir, sine inverse 3 by हाँ, 5. साइन इनवर्स 3/5 आना चाहिए. थीटा 37 डिग्री आएगा. अगर एंगल विथ हॉरिजॉन्टल निकालना है और एंगल विथ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, फ्लो ऑफ रिवर निकालना है, इन दैट केस यू विल सी द एंगल इज फ्रॉम हियर, इस डायरेक्शन से निकालना होगा, तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे. फिर 90 प्लस थीटा, दैट विल बी 127 डिग्री. सो ऐसे जब भी वाटर में ट्रैवल कर रहे हो, रिवर फ्लो कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में लिख सकते हैं. सर एक्चुअली cos inverse -3/5 आया था. अच्छा, cos इनवर्स -3/5 है. ओके, सो दैट विल बी sin इनवर्स 4/5. या सेम एंगल आएगा, नेगेटिव आएगा तो फिर उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो ट्राई करने की पॉजिटिव रखें. बाकी वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू. तो मिनिमम टाइम के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये परपेंडिकुलर रखना है, और जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको परपेंडिकुलर रखना है. ये दो चीजें आप याद रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स थे, या रिवर में फ्लो हो रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे.